starting now. See, now we see the path difference. Suppose this is the initial position of the rope, and ये particle इसका यहाँ पे पहुंच चुका है, और ये यहाँ वाला particle यहाँ है. तो जो original position है उनके बीच का जो distance है, that is called the path difference. ये वाला particle जो था यहाँ है, at this location it is here. At this moment, it will come down to the mean position. Then again, further down, this will also come down there. Original. This is the original position of the rope. तो उनके जो दो particles का जो हम बात कर रहे हैं, जिनका हमें phase difference निकालना है, उनके बीच का जो path है along the x-axis, if wave is traveling along the x-axis, wave इधर जा रही है ना, तो that distance between the two particles of medium, for which we are going to determine the phase difference, उनके बीच के डिस्टेंस को पाथ डिफरेंस बोलते हैं, है ना, पाथ डिफरेंस. तो ये भी टेंटेटिव डेफिनेशन बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, जस्ट वी कैन मेक एंड राइट फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन between 2 points of the medium for which phase difference is to be measured is called path difference, and it will be in meters. ये distance है तो मीटर में होगा, इसका simple unit मीटर में होगी. Good. तो main point is how to relate both. दोनों के बीच में relation क्या होगा? That is the important point. Let's see how do we relate both of them. We can take phi and x, or we can take delta phi and delta x. Both are same. This both symbols are for the phase difference. These both symbols for the path difference. So let's see how they are related. This is useful relation. We need it in the 12th also. जब हम ray optics पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें बहुत काम आएगा ये relation. So let's do that. How both are related. Relation between phase difference and path difference. Suppose one particle is at origin, other particle is here, which is wave is like this. ये wave है, and एक particle हमने origin का consider किया, एक यहाँ पे consider किया. तो this is nothing but a one wavelength lambda. और ये जो lambda है, पार्टिकल कितना ऑसिलेट करे, इधर जो ऑसिलेटर है, ब्लॉक जो था, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा. एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसका सर्कुलर पाथ कितना होगा, हमने देखा था सर्कुलर पाथ ऐसा. एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वो उसका जो सर्कुलर पाथ है, या वन कंप्लीट सर्कल में वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. प्रोजेक्शन याद है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन द डायमीटर. One circular motion was equivalent to the one oscillation. One circular motion में एंगल कितना बनता है? 2 पाई बनता है. Yes sir. One circular motion में 2 पाई बनता है. It means when the one wavelength is produced, there is the angle made by the circular particle will be 2 pi. One wavelength corresponding to 2 pi. आपने साइन कर्व भी देखा होगा सर. साइन कर्व में हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर कितना लिखते हैं? π/2. यहाँ पर पाई लिखते हैं, फिर यहाँ पर 3π/2, यहाँ पे 2 pi. तो वन कंप्लीट वेव इज इक्विवेलेंट टू 2 pi. फेज डिफरेंस, तो लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 pi. तो 1 मीटर के लिए, नाउ यू कैन सी फॉर लैम्डा मीटर डिफरेंस वी हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 2 pi. Got it? Therefore, 1 meter path difference, phase difference will be 2 pi by lambda. Lambda के लिए 2 pi है, तो 1 meter के लिए lambda नीचे आ जाएगा, 2 pi by lambda. Got it? Unitary method. 1 meter के लिए निकाल लिया, तो x meter के लिए x से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Simple logic. Yes sir. All right. तो 1 meter के लिए इतना आ गया. Therefore, for x meter or delta x meter के लिए phase difference delta phi is given by
बस यहाँ पे इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे फॉर 1 मीटर तो फॉर डेल्टा एक्स मीटर डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द रिलेशन, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और वी कैन राइट, अगर डेल्टा नहीं लिखना है तो फाई लिखो, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स, वेयर एक्स इज द पाथ डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस। तो हमें दो पार्टिकल के बीच का पाथ पता है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। दो पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब उनके बीच का डिस्टेंस पता है तो किस फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, है ना, तो वो हम निकाल सकते हैं, वेदर दे आर इन फेज, है ना। जब 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है तो दे आर ऑसिलेट। देखो यहाँ का जो पार्टिकल है, इफ इट इज गोइंग अप तो ये वाला भी ऊपर जा रहा होगा। पूरा 2 पाई के लिए वी कैन से द फेज डिफरेंस इज 2 पाई, मींस दे आर इन फेज, दे आर ऑसिलेटिंग टुगेदर। 2 पाई 4 पाई इनको हम फेज बोल सकते हैं, दे आर इन फेज। इफ अदर देन दीज एंगल्स दे विल बी आउट ऑफ फेज। सपोज यहाँ का देखो, ये पार्टिकल विल बी गोइंग अप, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा उस समय। यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई होता है। आधी वेव का एंगल पाई होता है, फुल वेव का एंगल 2 पाई होता है। Got it? So this is the relation between phase difference and path difference. So very important for the subsequent chapters also. इसकी हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। I will tell you the shortcut method. If you don't remember this formula, then also you can manage some with the common sense. You can manage the things. यहाँ तक okay? No problem. Relation between phase difference and path difference of the particles of the medium. मीडियम में किसी दो पार्टिकल्स के बीच का हमें अगर डिस्टेंस पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कितने फेज में है वो, वाइब्रेटिंग इन व्हाट फेज, फेज डिफरेंस क्या है उनके बीच में। क्लियर? शैल वी डू द न्यूमेरिकल? डू यू कैन यू रिमेंबर दिस फार्मूला? फाई इज इक्वल टू 2 पाई। देखो ये फाई क्या होता है, एंगल ही होता है, यहाँ भी 2 पाई एंगल से रिलेटेड है, और नीचे लैम्डा है और यहाँ एक्स है। इन दोनों की यूनिट मीटर मीटर होती, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगी, एंड पाई के टर्म्स में आंसर बचेगा। एंगल है तो पाई के टर्म्स में डिग्री या पाई के टर्म्स में, रेडियन के टर्म्स में आंसर बच जाता है, मीटर की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। Phi will be dimensionless, you know. What will be the dimension of phase difference or phase? Phase का dimension क्या होता है? Dimension of phi क्या होगा बोलो? Can somebody tell? Dimension of phi? Sir, it will be dimensionless quantity. Yes. M0 एंगल है, कुल मिला के वो एंगल से रिलेटेड होता है। ML0 T0 एंगल इज इक्वल टू R का पान रेडियस, है ना। दिस इज phi are nothing but related to angle only. Somewhat they are angle only. They represent the angle only. प्लेन एंगल कोई रिप्रेजेंट कर रहा है समझ लो। प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क मींस एल, रेडियस मींस एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा। M0 L0 T0। Got it? Yes, sir. So let's see the 2 or 3 useful numericals, very helpful for the subsequent topics. देखो, if path difference between 2 points is lambda by 4, find the phase difference between the 2 points or particles. So we can write the formula x is given, है ना। x कितना दिया, lambda by 4 दिया। निकालना क्या है, phi निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस का फार्मूला बताइए, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा लैम्डा गेट्स कैंसल, पाई बाय 2। क्लियर? सिंपल। देखो एक और को बता देता हूँ फिर। इसमें देखो लैम्डा बाई 3 है, तो ये क्या आएगा, वैल्यू लैम्डा बाई 3 पुट कर दी हमने, लैम्डा लैम्डा गेटिंग कैंसल, 2 पाई बाई 3। तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो जाता है ना। रेडियन है, पाई बाई 2 रेडियन, इसकी यूनिट तो फेज डिफरेंस की रेडियन ऐसा यूनिट होती। बट अगर हमने डिग्री में लिखना चाहा तो कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। और ये कितना है,
ये रेडियन में आ गया, 2π/3 रेडियन, ऐसा यूनिट इज रेडियन। डिग्री में कितना होगा ये? π/3 में 60 into 2, 120 डिग्री है ना। बट जनरली यू हैव टू राइट इन रेडियन ओनली, डिग्री में मत लिखो। डिग्री में लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। देखो लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2π है। 2π कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो λ/3, लैम्डा को 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 डिग्री आ गया। और पहले वाला क्या था? λ/4। अगर हम लैम्डा को 4 से डिवाइड करते तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, 90 डिग्री आ गया, है ना। तो जो लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है, लैम्डा जिससे डिवाइड हुआ है, 360 को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो लैम्डा को 4 से डिवाइड किया, तो लैम्डा किसके बराबर है? 360 के बराबर है, डिग्री के टर्म में बात करें। लैम्डा 2π रेडियन इज नथिंग बट 360 डिग्री। तो 360 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे ये λ/6 है, λ/6 है, इसका फेज डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा को 6 से डिवाइड किया तो 360 को भी 6 से डिवाइड कर दो, तो 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। Yes, और sir. 60 डिग्री को, यस 60 डिग्री को हम बाद में π/3 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर फार्मूला भूल भी गए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस दिया तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। अगर बोला जाए फेज डिफरेंस 60 डिग्री है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो तुम देखोगे 60 कितना है? 360 को 6 से डिवाइड किया गया होगा तभी 60 आया, तो लैम्डा को भी 6 से डिवाइड कर दो तो वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बेटर रिमेंबर this relation, very useful. All right, so far okay. Yes, sir. Note down. एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ इसका फिर भी होमवर्क के लिए। डन। क्वेश्चन भी मैं नीचे देख, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता, यू कैन नोट डाउन होमवर्क क्वेश्चन। कैन यू सी नीचे, सबसे नीचे, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है और पाथ डिफरेंस चाहिए और लैम्डा की वैल्यू भी दे दी है। Wavelength is also given, so you can do it in homework. Note down, and we'll continue with some more important points. ठीक है, यहाँ तक ओके, डन। Yes, sir. ऑलराइट, तो देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन ही है इनफैक्ट, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बट इज देयर एनी इशू? एक मिनट, कैन यू सी इट? ऑलराइट, हाँ ठीक है, थिंग्स आर ओके। देखो एक मिनट, ये थर्ड वाला पार्ट, लास्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ है इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो लास्ट पार्ट बाद में देखेंगे। Now can we read this question? Can we see this question number 10th of the exercise, chapter number 15, question number 10? For the traveling harmonic wave given by this relation, where x and y are in centimeters and time is in seconds, calculate the phase difference between the oscillatory motion of two points
separated by the distance of 4 meter. This is good question, indirect question. अभी जो हमने किए डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्या दिया है, ये x दिया है ना, तो हमें क्या निकलना है, क्या फाई निकलना है. x या डेल्टा x, I told you, you can take the both the symbol. We'll continue to take x only. ठीक है. तो कैसे करेंगे, एक मिनट ये इसको हटा देता हूं मैं पहले. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी. एक पार्ट बता दीजिए, बाकी अपने आप कर लीजिए. Only if we can do first part, we can do remaining parts. फार्मूला आपके पास है. फाई इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला बताओ, बोलिए 2 pi फार्मूला. by lambda x. या 2 pi by lambda into x. तो x is also given, तो क्या प्रॉब्लम है फिर. x is given 4 meters. तो can we do, lambda is not given है ना, lambda indirectly given. lambda indirectly given. कैसे निकालेंगे lambda, यहां से. अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला तो था वेवलेंथ. तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें x का कोफिशिएंट लेना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बोलते हैं, क्या सिंबल होता है. अच्छा ये ओके, वेरी गुड. इसमें एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेल मी हाउ मच इज द k गिवन. तो पहले k निकालना पड़ेगा सबसे पहले, बाद में ये आगे, उससे पहले हमें लैम्डा मिलेगा. k कैसे निकाले बोलो. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ k, कैन somebody tell me. Sir, 0.0080. No. Sir, I'm Anybody else? confused if it is going to be plus or minus. Minus sign, k will be always positive. Minus sign indicates direction of motion. It is going along the direction of positive x-axis. तो ये हमें माइनस नहीं लेना, हमें k is always positive. यहाँ पे लिख दूं मैं ऊपर, k is always positive. k is always positive. तो माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. Can somebody tell how much is the value of k? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक पॉइंट. देखो ये 2 पाई कॉमन लिया हुआ है ना, पहले 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी. तो जो t का कोएफिशिएंट होगा वो ओमेगा हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट k हो जाएगा. तो k विल बी 2 पाई इंटू 0.008. ठीक है, समझा. ये 2 पाई यहाँ पे देखो दिया हुआ, छुपा के उन्होंने. और ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस फंक्शन है या साइन फंक्शन है. कॉस फंक्शन भी हो सकता है. कॉस फंक्शन मतलब रेफरेंस पॉइंट, उन्होंने जब ओरिजिन पर वेव पहुंची, वो पार्टिकल उन्होंने कहाँ पे लिया होगा, जब एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तब वो पार्टिकल उन्होंने t = 0 लिया होगा, इसीलिए कॉस का फंक्शन है वो, है ना. एक्सट्रीम पॉइंट पे जब t = 0 लेते हैं तो SHM में कॉस का रिलेशन आया था कि नहीं आया था. सेम थिंग इज वैलिड हियर आल्सो. तो k मिल गया हमें. ठीक है, ये 2 पाई, डोंट मिस दिस 2 पाई, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट, बिकॉज यू विल बी लैंड अप विद द रॉन्ग आंसर. तो k हो गया. k होता क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है. k is nothing but 2 pi, propagation constant is 2 pi by lambda. 2 pi into 0.008, 2 pi goes, so lambda is equal to 0.0081 नहीं है, 0.008. तो ये डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा. और सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज x and y are in सेंटीमीटर. तो कितना आ रहा बाय द वे, 10/8 into 100. 100 अलग कर लिया सेंटीमीटर के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.125 सेंटीमीटर, है ना. मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में था. ठीक है, एम आई राइट. या फिर ऐसे कर लो, चलो इसको 5/4 भी लिख सकते, कैंसिल हो जाएंगे कुछ. 5/4 मीटर.
Got it? Yes, sir. Now we can put the value here. अभी हमें ये रिलेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यूज यहाँ पर. Okay, now x is given directly. This is very good question. In fact, आपको JEE level का question हो गया ये, because things are not given directly. So very important for NEET also. So therefore, phi is equal to 2 pi by lambda into x. 2 pi by lambda की वैल्यू 5 by 4, 5 नीचे 4 ऊपर आ जाएगा. x भी 4 है ऊपर है. तो देख लो अभी सॉल्व करके ये आपका 632 into pi by 5 20 के आसपास आ रहा है. कितना देखते हैं आंसर पाई के टर्म में 6.4 पाई रेडियन. डू वी गेट इट? 6.45 1632 हाँ आ रहा है 6.45 6.4 पाई सॉरी पाई एज इट इज रेडियन. गॉट इट? Yes, sir. ये 0.5 है. 0.5 मीन्स कितना हो गया ये 8 से डिवाइड किया उसको 1/8 ऑफ दिस. 1/8 ऑफ दिस विल बी 0.8. 0.8 पाई सही है 0.85. सेकंड पार्ट इज ओके. थर्ड पार्ट तो डायरेक्टली दिया हुआ. लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं थी थर्ड पार्ट के लिए. लैम्डा बाई 2 है. लैम्डा बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ द 180 डिग्री आ जाएगा. पाई आ जाएगा इसका है ना. ये पाई आ जाएगा डायरेक्ट. और ये 3 लैम्डा बाई 4 है. तो देखो 3 लैम्डा बाई अच्छा शॉर्टकट बता दूं. देखो लैम्डा बाई 2 का अगर फार्मूला यूज नहीं करना है तो लैम्डा की जगह कितना आता है? तो लैम्डा मीन्स 180. लैम्डा मीन्स हाफ वेवलेंथ. नहीं सॉरी लैम्डा मीन्स 2 पाई. तो ये पाई हो गया. और यहाँ भी लैम्डा की जगह 2 पाई पुट कर दो. 3 इंटू लैम्डा इज 2 पाई बाई 4. तो ये आपका 3 पाई बाई 2. तो ये 3 पाई बाई 2 आंसर होना चाहिए. टेक्स्ट बुक में उन्होंने पाई बाई 2 दिया था विच इज रॉन्ग. तो मैंने यहाँ पे देखो आंसर करेक्ट कर दिया 3 पाई बाई 2. ठीक है. तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. मैंने क्या बताया एक और शॉर्टकट बताया समझ में आया क्या बताया मैंने? जहां पर पाई है देखो लैम्डा है ना यहाँ पर लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो तो फेज डिफरेंस आ जाता है. देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में वापस चलते हैं. जैसे ये है लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो पाई बाई 3 आ गया. यहाँ पर भी देखो कहाँ था लैम्डा बाई 4 था. तो लैम्डा को देखो लैम्डा बाई 4 था तो लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस बिकॉज वी नो दिस. ये रिलेशन में देखो लैम्डा किसके करेस्पॉन्डिंग है? 2 पाई के करेस्पॉन्डिंग है. जहां भी लैम्डा दिखता है उसको 2 पाई से रिप्लेस कर दो और नीचे 4 है तो ये कितना आ गया पाई बाई 2. गॉट इट? अगर फार्मूला याद नहीं भी आ रहा है तो इजी मेथड टू गेट लैम्डा को किससे रिप्लेस करना है? 2 पाई से. एंड दैट विल गिव यू व्हाट? फेज डिफरेंस. बहुत सारे मैंने शॉर्टकट बता दिए. इट्स अप टू यू. यू रिमेंबर द फुल फार्मूला बेटा. शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी लॉन्ग कट हो जाता है. गॉट इट? तो सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको. लैम्डा निकालने का टिक था बाकी तो इजी है. Yes, sir. So this question is 10th question of the exercise. Can be asked in your terms examination and competitive examination. आंसर ये ऊपर लिखे हुए देखो फर्स्ट. बाकी हमने क्रॉस चेक कर लिए ये भी सही है. Anything you want to ask? How is this chapter? Wave chapter कैसा लग रहा है आपको? Sir, it is okay. Not अभी तक really. ठीक है? Yes, sir. I Okay. mean, we can understand, but it's okay. Like not Generally as. wave. Okay, ठीक है. तो can we continue further? We have some time. Yes, sir. देखो अभी ये डन. दिस इज डन. लैम्डा ये यहाँ तक आपको आना चाहिए अच्छे से. ऑलरेडी वी डिड द प्रीवियस क्वेश्चन टू गेट द लैम्डा.
here also lambda मिलने के बाद फार्मूला लगा दिया। देखो कुछ और पॉइंट्स which will be helpful। यहाँ पे देखो, what is the velocity of particle of medium? Find its maximum value. What is this question? बोलो। हम लोग अभी तक किसकी वेव वेलोसिटी की बात कर रहे थे? पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट। देखो पार्टिकल वेलोसिटी, तो जैसे सपोज हम रोप में वेव की रोप में वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे जर्क देखे है ना, तो पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव इधर जा रही है, वेव की एनर्जी इधर ट्रांसफर हो रही, पार्टिकल ट्रांसवर्स मोशन कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट, पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, and wave is nothing but a transfer of energy. What rate energy is transferred in meter per second? That is the wave velocity. Both are different. Yes, both are different. So how to get the velocity of particle of medium? Bole, can anybody tell me? How to get it? देखो ये क्या है, y is the displacement of particle, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, particle velocity is given by dy by dt। ओके यहाँ पे लिखो, particle velocity is given by, उसको vp कर देते हैं, which is nothing but a dy by dt। Got it? Simple, but it is not, we are not done the differentiation. Why? Because we know they are doing the SHM कर रहे हैं कि नहीं? SHM की velocity हमें पता है, we can directly write। Why to do the differentiation? बोलो क्या थी velocity? Since particles are doing SHM, Sir, it is A omega cos omega t। ठीक है, हाँ टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो अपने डिफरेंस, ओके चलो एक मिनट, लेट मी राइट हियर, पार्टिकल आर डूइंग एसएचएम, तो देयरफॉर पार्टिकल वेलोसिटी दो रिलेशन है, एक तो टाइम के टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या था, एक और था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह वाई है, यहाँ पर उनके पार्टिकल के मोशन को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे। डू यू रिमेम्बर? v इज इक्वल टू इन एसएचएम v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ पर वाई है, वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो एक तो ये हो जाएगा बस। ये ज्यादा काम किए, वो टाइम वाली जो जनरली टाइम की यूज नहीं होती, बट दिस इज जनरली यूज्ड, देयरफॉर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। टाइम के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्या आ जाएगा, vp विल बी dy by dt, डिफरेंशिएट किया ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, वहां भी कॉस के टर्म में ही था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट दिया जाता है, उसकी लोकेशन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा। तो बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस, व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। दोनों सही से, अच्छा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? देयरफॉर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, कैन समबडी टेल? वी मैक्स, वीपी मैक्स लिख रहे हैं यहाँ पर। जब y 0 हो जाए, मीन पोजीशन पे पार्टिकल है, उस समय मैक्सिमम होगा ए ओमेगा। एसएचएम में पढ़ा था कि नहीं हमने? पार्टिकल की एसएचएम के पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा। यस सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वही यहाँ पर भी, बिकॉज दे आर डूइंग एसएचएम, देयरफॉर maximum velocity of the particles will be a omega. Got it?
ऑल राइट, अप टू हियर ओके। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, बट दे आर द पार्ट ऑफ अवर कोर्स ओनली. They are just not mentioned in our textbook, but they are very important points if you go for the competitive examination. देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार it has been asked in competitive examination, if wave velocity is twice of the maximum particle velocity, then find the relation between amplitude and wavelength of the wave. तो जो कंडीशन है वो लिख दो. वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओके, वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ वीपी मैक्स, ये दिया हुआ है. तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था. वेव स्पीड कितनी थी? वेव स्पीड एफ ओमेगा एफ लैम्डा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये थी. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है ए ओमेगा. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ. फ्रीक्वेंसी गेटिंग कैंसल, तो लैम्डा इज नथिंग बट ए 4 पाई इंटू ए. ये रिलेशन आ गया. तो इट कैन बी एनीथिंग. ये ट्वाइस और थ्राइस और 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड. कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल. Wave velocity can be more or can be less than the maximum particle velocity, because both are depending upon their own factors. Wave velocity temperature पे depend करती है और maximum particle velocity किस पे depend करती है? Of course, wave velocity दोनों frequency पे depend कर रही है. देखो, है ना, वो तो depending upon the frequency goes. ठीक, कैलकुलेशन ठीक है. तो Sir, it can be sir, will lambda frequency पे will be just 1 by lambda is equals to 1 by 4 pi a? frequency will be what actually frequency is. Frequency तो कैंसिल ही हो गई नहीं यहाँ पर. तो we have the relation between lambda and a only. ये तो constant है ना. In this case, suppose amplitude goes up, lambda goes up, है ना. Are these conditions only. So, sir, frequency, if you were to relate frequency and amplitude, then frequency will just be 1 by lambda, right? So it will be just 1 by 4 pi a. In this case, frequency will be, we can write 4 pi. We can write. Yes, sir. That relation will always be lambda. देखो, नहीं, frequency is one. नहीं, frequency is not 1 upon lambda. Who told you 1 upon lambda? So that is 1 upon Frequency T. is, no, frequency is lambda is v by f, because v is equal to f lambda. So lambda will be v by f. Got it? अभी तो डिराइव किया था हमने. यहाँ तो लिखा है ना वैल्यू. देखो, v is equal to f lambda. So lambda is v by f. Yes, Got sir. it? फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर हैविंग द रेसिप्रोकल रिलेशन. उसमें 1 आता है ना ऊपर. Got it? Yes, This sir. is a very popular question in the competitive examination. This type of question. ये एक दो क्वेश्चन और हैं. These are the general questions depending upon the frequency. ये जो हमने रिलेशन लिखा था v is equal to f lambda, उस पे बेस है. And we use in the medical science this particular point. Frequency doesn't change, is very useful for the ultrasonic that instruments. Let's see what is this. A bat emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of reflected sound and transmitted sound? Suppose ये ऐसे ये वाटर सरफेस है, तो ये वेव आई इधर, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई.
कितनी फ्रीक्वेंसी की 1000 किलोहर्ट्ज की। एंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पर v कितना दिया है, एयर में 340 और वाटर में कितना दिया है 1486 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड में। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज रिफ्लेक्टेड साउंड की वेवलेंथ निकालनी है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। रिफ्लेक्टेड साउंड किस में, एयर में, तो उसकी स्पीड 340 रहेगी। f इज गिवन 1000 किलोहर्ट्ज, 1000 इंटू 10⁻³ भी रहेगा। एंड लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज हाउ मच, कितना आ रहा 3.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -4 मीटर। ये आंसर आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट के लिए v कितना लेंगे 1486, ये यहाँ पे 1486 आ जाएगा, तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगा लैम्डा, रफली 5 टाइम्स मोर हो जाएगा। जस्ट आई टोल्ड रफली, है ना। वन पॉइंट 1.49 आ रहा है सेकंड पार्ट का आंसर 1.49। कैन यू कंप्लीट दिस? You can see the answer both, you can do it. Second part भी वैसे ही होगा, velocity in the medium, velocity in the water is changing. You will write 1486 लिखेंगे यहाँ पर, same formula again for second part। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लीजिए अपने आप। 15.6 first part I have done, second part you do yourself. Now last question, if time is there we can do this। देखो ये एक मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, ये अल्ट्रासोनिक स्कैनर का, and that point is used. Frequency doesn't change in the change of the medium, that's how it can locate the tumor in the body। Let's see, hospital uses a ultrasonic scanner to locate the tumor in the tissue। What is the wavelength of sound in the tissue in which the speed of sound is this much and frequency, operating frequency of scanner is 4.2। It is in air, but when this frequency enters into the tissue, it remains same। That is the important point। It will not change with the change of medium। Air से चलकर ultrasound body में जा रहा है, where the medium is changing, but frequency doesn't change। So you can find out the wavelength। Tissue के अंदर उन्होंने speed तो दे दी sound की, है ना। It is denser than water, तो further higher, water में कितनी थी 1400 something थी, it is 1700, है ना। Human bodies, most of the things are water only, but थोड़ा सा और denser है, tissues are further denser, तो